ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आईपीसी को देखिए, सबसे इन शॉर्ट बहुत सिंपल तरीके से हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और आईपीसी अगर आपको पहले से ही पता चल जाए, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इंडियन पीनल कोड while you are attempting your questions, I think much of the problem is solved, right? So most of the aspirants, they usually refrain from reading Indian penal code all by themselves. So what I'm going to do is I'm going to read it clause by clause, section by section. So be ready with pen and a paper. And in this particular lecture, we are going to focus on the first few sections of Indian Penal Code, which are very, very centric. And uh, their definition part is important, the extension part is important. So we'll focus on Indian Penal Code in that manner. Now, if you look into this, first thing is important that this act is operational from 1860. If we talk about section 1 of this particular act, the title and extent of operation of the code is given in this particular section. It states that this act shall be applicable. First, it will be called as Indian Penal Code, and it shall extend to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. So, it is not applicable in Jammu and Kashmir, and it is applicable to the whole of India as per this particular section. But I think after the special provision for J&K has been revealed, the bill has already been passed for the extension of Indian Penal Code in Jammu and Kashmir as well. Now the Ranbir Penal Code has been basically discontinued because the law that was applicable in the criminal law that was applicable in Jammu and Kashmir was called as Ranbir Penal Code, right? So before IPC was implemented, Ranbir Penal Code was there in your Jammu and Kashmir. But after August 5, 2019, then the special status has been revoked. IPC is also applicable in Jammu and Kashmir, right? So we'll leave the other two sections because this is not important for us, right? Section 2 is important, very important in fact. Section 2 goes on to state that punishment of offences committed within India. So every person, it is important that it is stating that har koi, every person shall be, which means mandatorily shall be liable for punishment under this code and not otherwise, right? For every act or omission contrary to the provisions thereof. Now, for every act, so please understand the very basic definition includes every person. It does not exclude anyone, which means IPC does not give special kind of privileges to anyone. The word shall mentions that there is no discretion of any other authority. It has to be followed what is given in IPC. So every person shall be liable for punishment under this code and not otherwise, right? Why? For every action or for every omission, which means कुछ करने के लिए या कुछ ना करो आप तो भी आपको सजा मिलेगी if you are doing any action or omission which is contrary to the provisions given, right? Thereof, of which he shall be guilty within India. So it states that the person is doing any action, and if that action or omission is punishable within India, every person shall be liable. It also includes foreigners here. The original words, the said territories have successfully been amended, so this particular provision is not important, right? Further, we move to section 3. Section 3 states punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within India. Now it tells you the extraterritorial operation of Indian Penal Code and states that punishment of offences committed beyond India but which may by law be tried within India. Punishment that for actions, offences which are committed beyond India but that can be tried in India. So now it comes to from every person, it comes to any person in section 3. Any person who is liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India
shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. Now, what this line tells you. So, if this principle is given, if this principle is before you, what will you understand? The very best that we can understand is from this is that if any person can be tried within India, right? If any person like कोई फॉरेनर आया भारत देश में, उसने कोई अपराध किया, राइट? भारत देश में आया तो सेक्शन 2 लग जाएगा, बिकॉज ऑफेंसेस बाय एनी पर्सन एवरी पर्सन कमिटेड विद इन इंडिया में आ जाएगा. लेकिन अगर वही ऑफेंस उसने बाहर किया, राइट, और वो लायबल है इंडियन लॉ में, राइट, तो उसको इंडिया के अंदर ट्राई वैसे ही करेंगे जैसे कि आईपीसी में दिया गया है, इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, राइट? सो which means this also tells you that IPC is applicable for anything done beyond India, provided that there is a way out where the person can be tried inside India also. So you need to understand, this talks about not the foreigner, this talks about for offenses which are committed beyond India, right? Section 4 talks about extension of the code to extraterritorial offenses. Now it tells you that the provisions of this code also apply to any offense committed by, first, any citizen of India, which is who is beyond India, right? In any place without and beyond India. Any person on any ship or aircraft registered in India, wherever it may be, right? So this is very important for us to understand that if any ship, कोई भी जहाज या हवाई जहाज जो कि इंडिया में अगर रजिस्टर्ड है और पूरी दुनिया में कहीं पे भी है और उसमें कोई ऑफेंस हुआ तो आईपीसी के प्रोविजंस लग जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज पे, उस पर्टिकुलर शिप पे. दूसरा, कोई भी सिटीजन भारत का है जो कि दूसरे देश में अपराध कर रहा है और वो भारत के देश में कानून व्यवस्था में अगर अपराध है तो उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं. देखिए, दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है कि पहला, ये सिटीजन के ऊपर बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है कि आप नागरिक होने चाहिए भारत के, और दूसरा रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, इन इंडिया होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट टेल्स यू दैट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस में भी ये एक्सटेंशन ऑफ द कोड लग जाता है. और कह रहे हैं, सेक्शन 3 कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को इंडियन लॉ में ट्राई किया जा रहा है तो उसको उसी तरीके से डील किया जाएगा जैसे इस आईपीसी में दिया गया है, उसको किसी भी तरह का स्पेशल प्रोविजन नहीं दे सकते, राइट? द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड. सो अगर आपसे सिंपली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी क्रिमिनल किसी कंट्री में मर्डर एक ऑफेंस नहीं है पर आप भारत के नागरिक हो और आपने वहां पे किसी का मर्डर किया, तो उस कंट्री में मे बी आप लायबल ना हो, पर क्या इंडियन पीनल कोड के हिसाब से क्या आपको इंडिया में ट्राई किया जा सकता है? तो क्योंकि आप भारत के नागरिक हो और जो अपराध आपने किया है, जो काम आपने किया है, द एक्टिविटी इज मर्डर एंड दैट इज बेसिकली ए पनिशेबल इनसाइड इंडिया. तो अगर वो पनिशेबल इन इंडिया है तो आपके ऊपर आईपीसी की वो धारा लगा के यू कैन बी ट्राइड. So this is very simple and interesting also to understand. सिंपल क्या है, कैसे है, और इंटरेस्टिंग क्या है वो भी समझ लेते हैं. देखिए, हम बात कर रहे हैं आईपीसी के ऑपरेशन की, राइट? तो आईपीसी का ऑपरेशन जो है एक इनसाइड टेरिटरी है. इनसाइड टेरिटरी में आप क्या हो, या तो आप सिटीजन हो सकते हो या तो आप फॉरेनर हो सकते हो, ठीक है? इसीलिए वर्ड यूज किया था एवरी पर्सन. चाहे आप सिटीजन हो चाहे आप फॉरेनर हो, अगर आप टेरिटरी के अंदर हो और आपने कोई एक्शन किया या आपने कोई ओमिशन किया, आपने कोई एक्शन किया या ओमिशन किया जो कि पनिशेबल है, तो क्या कमीशन हो गया? ऑफेंस कमिट हो गया. और ऑफेंस कमिट हो गया
तो आईपीसी आपके ऊपर लगेगी। और वहीं इसका ऑपरेशन अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, तो यहां पे सेक्शन 3 और सेक्शन 4 हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 को जरा बारीकी से समझिए। सेक्शन 3 कह रहा है एनी पर्सन इफ ट्राइबल इन इंडिया, तो प्रोविजंस ऑफ आईपीसी एप्लीकेबल। राइट। सेक्शन 4 कह रहा है कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और सेक्शन 4 में कह रहा है अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन है इसका, किसी भी शिप का या एयरक्राफ्ट का इन इंडिया, तो दोनों जगह पे सिटीजन ऑफ इंडिया है और एक्ट आउटसाइड इंडिया कमिट किया गया है आपने, और ये शिप एयरक्राफ्ट आउटसाइड इंडिया है। तो सेक्शन 3, सेक्शन 2, सेक्शन 4 ये 3 ऑपरेशन ऑफ आईपीसी की बात करते हैं। बहुत बारीकी से और ध्यान से इस चीज को हम फिर से समझ लेते हैं कि अगर कोई ऑफेंस हमारी टेरिटरी के अंदर किया गया, चाहे वो सिटीजन के द्वारा किया गया हो, चाहे वो फॉरेनर के द्वारा किया गया हो, वर्ड सजेस्ट होता है एवरी पर्सन। अगर वो एक्शन हमारे यहाँ पे, वो एक्शन या वो ओमिशन अगर पनिशेबल है तो आईपीसी क्या होगा, लगेगा दोस्त। ठीक है। दूसरा हमारे सामने कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि अगर ऑपरेशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, यानी कोई अपराध ऐसा जो कि किसी व्यक्ति ने किया है जो कि भारत का नागरिक नहीं है, अगर उसको किसी भी कानून व्यवस्था के माध्यम से इंडिया में ट्राई कर रहे हैं, इंडिया में अगर उसको एफआईआर दर्ज करके कानून व्यवस्था में ले रहे हैं, तो आईपीसी के प्रोविजन के हिसाब से ही उसको ट्राई किया जाएगा। और उसके बाद फर्दर जो हम यहाँ पे बात देखते हैं सेक्शन 4 की, तो सेक्शन 4 कहता है कि अगर किसी भारत के नागरिक ने इंडिया के बाहर कोई ऐसा काम किया जो भले ही वहां सजा उसकी ना मिले, लेकिन इंडिया में वो अपराध है, तो आईपीसी उसके ऊपर लगेगी। दूसरा, अगर कोई शिप है जो कि रजिस्टर्ड है विद इन इंडिया, है ना, और वो शिप ट्रैवल कर रहा है इंडिया की टेरिटरी के बाहर है, तो भी आईपीसी का ऑपरेशन होगा। दिस इज मोस्ट फंडामेंटल फॉर एनी ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। ये आईपीसी के बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है। सेक्शन 4 में आपको आगे इलुस्ट्रेशन देता है। इलुस्ट्रेशन में देखिए क्या कह रहा है। ए, हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया commits a murder in Uganda, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. So it does not matter what the law of Uganda says. Since you have committed a murder and you are a citizen of India, then that means you are tribal in India. Right? So this is very important for all of you to understand. If we come to section 5, now what is section 5 talking about? Certain laws not to be affected by this act. What do you mean? ये कह रहा है कि कुछ ऐसे लॉज हैं जिन पे ये आईपीसी का ऑपरेशन नहीं लगेगा, यानी एरियाज वेयर आईपीसी इज नॉट applicable. Right? This is what it is talking about. Now with respect to, so like we were discussing with respect to the operations of IPC, now there are also certain points, certain areas where this act is not applicable, जहाँ पे ये act applicable नहीं है। तो ये act applicable कहाँ नहीं है? Section 5 कहता है that nothing in this act shall affect, मतलब किसी भी तरीके से it will not affect, shall the provisions of any act
for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, airmen in the service of the government of India, or the provisions of any special or local law. So please understand, very explicitly ये कह रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में जो कोई भी एयरमैन, पायलट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइटर पायलट्स, नेवी वाले लोग, सेलर्स, किसी भी तरह के सोल्जर्स, इन पे आईपीसी नहीं लगेगा। इन पे अलग तरीके से इनका कानून अलग होता है, इनको ट्राई करने का कानून अलग होता है। दूसरा, कोई भी अगर म्यूटिनी करे या कोई भी ऑफिसर डेजर्शन करे, अपनी सर्विस छोड़ के भाग जाए, तो भी उस पर आईपीसी नहीं लगेगा। तो पहले पार्ट पे तो आपको ये बता रहा है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस पे आईपीसी नहीं लगेगा। दूसरे पार्ट में आपको ये बता रहा है कि कोई स्पेशल लॉ है या कोई लोकल लॉ है जो कि किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई कर रहा है, तो उस पर भी ये लॉ नहीं लगेगा। यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ जिसने एक्सक्लूसिवली कह रखा है कि आईपीसी नहीं, वो उस अपने कानून के हिसाब से पनिशमेंट देना चाहता है, सज़ा देना चाहता है, तो सेक्शन 5 उसको ये इजाज़त देता है। ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो भी स्पेशल लॉ होगा या जो भी लोकल लॉ होगा, ये अथॉरिटी, राइट अथॉरिटी द्वारा बना होना चाहिए। ये स्पेशल लॉ, लोकल लॉ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बना होना चाहिए, यूनियन लेजिस्लेचर के द्वारा बना होना चाहिए, और इसको पार्लियामेंट की तरफ से एक्सेप्शन मिला होना चाहिए। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर मामला है जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, और उसके मामले के हिसाब से अगर कोई भी चोरी होती है या कोई भी ऐसा एक्शन होता है, इनएक्शन होता है जो कि स्टेट में पनिशेबल है, तो उसमें आईपीसी नहीं लगाएंगे। और पार्लियामेंट इसकी अनुमति देता है, हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है, और आईपीसी का सेक्शन 5 भी इस चीज़ की अनुमति देता है। अब सेक्शन 6 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 6 में जो भी चीज़ें कही गई हैं वो आईपीसी में दोबारा नहीं कही जाती। मतलब ये डेफिनीशंस जो हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप आईपीसी का कोई भी प्रोविज़न पढ़ते हैं। तो इस पूरे कोड में जो भी डेफिनीशन दी गई है किसी भी ऑफेंस की, कोई पीनल प्रोविज़न दिया गया है, कोई इलुस्ट्रेशन दिया गया है, वो सब उस डेफिनीशन का पार्ट है। यानी इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए, प्रोविज़न को समझने के लिए आपको इलुस्ट्रेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, राइट। और उसी के साथ साथ कह रहा है कि आईपीसी में कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं जो कि जनरल एक्सेप्शंस के अंदर एक साथ बताए गए हैं। तो आपको इन एक्सेप्शंस को बार बार रिपीट नहीं करना है, ना आईपीसी रिपीट करेगा, पर जनरल एक्सेप्शंस, इलुस्ट्रेशंस और डेफिनीशंस के को अपने दिमाग में रख के आईपीसी का कोई भी प्रोविजन पढ़ना है। जैसे कि एवरी पर्सन, एनी पर्सन, दो वर्ड्स हमारे सामने आए जब हम सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को देख रहे थे। तो एवरी पर्सन और एनी पर्सन में पर्सन क्या हो सकता है, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऑफेंस की क्या परिभाषा होती है, क्या जहाँ पे फाइन लगता है उसको भी ऑफेंस कहते हैं। इन सभी मामलों पे अब सेक्शन 6 के अंदर सब क्लॉजेस में बात हो रही है, राइट। सो सेक्शन 6 के अंदर जैसे आप इलुस्ट्रेशन देखिए, सेक्शन 6 के अंदर 2 इलुस्ट्रेशन दिए गए हैं। सेक्शन 6 कहता है, द सेक्शंस इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 years of age कैन नॉट कमिट सच ऑफेंसेस, बट द definitions are to be understood subject to the general exceptions which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age। बड़ा सिंपल भाषा में आपसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, मतलब सिंपल भाषा नहीं, सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ भी ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है वहाँ हर बार नहीं लिखा गया है कि ध्यान रखो कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई ऑफेंस नहीं कर सकता। जब भी आप ऑफेंस की उस परिभाषा को पढ़ रहे हैं, उस डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड दैट अ चाइल्ड अंडर 7 years of age कैन नॉट कमिट सच एन ऑफेंस। सो इफ दिस इज गिवन इन आईपीसी अंडर जनरल एक्सेप्शंस, every general exception has to be read with every definition, which means you have to first understand and memorize general exceptions before you even begin to read about any other offenses. Illustration B को जरा ध्यान से देखिए. It states that a police officer without warrant apprehends Z. Please understand, whenever you read the word apprehends,
you will replace it with the word arrests. Apprehends means that the person is being taken under custody. So A is a police officer who is without warrant arresting Z who has committed a murder. Here A is not guilty for the offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. So A is duty bound because he is a police officer. वहीं मर्डर हो रहा है तो वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगा, और क्योंकि ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो बिना वारंट के करेगा. तो यहाँ पे अब आप ए पे आरोप नहीं लगा देंगे कि उसने रॉन्गफुली कन्फाइन किया एक व्यक्ति को, उसने उसकी लिबर्टी छीनी, बिकॉज जनरल एक्सेप्शन कहता है कि अगर कोई कानून बाध्य है, राइट, इफ समबडी इज बाउंड बाय लॉ, कानूनबद्ध है, तो आपको वो काम करना ही है और वो काम करने के लिए आपको सजा नहीं दी जाएगी. तो सेक्शन 6 आपको सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप सभी इलुस्ट्रेशंस को, जनरल एक्सेप्शंस को अपने दिमाग में रखेंगे जब भी आप किसी प्रोविजन को रीड कर रहे हैं. सेक्शन 7 कहता है कि दैट सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड. नाउ इट इज टेलिंग यू दैट अगर कोई एक एक्सप्रेशन आपको कोड में, इस पूरे आईपीसी में एक बार अगर समझा दिया गया है तो उसको उसी सेंस में हर जगह हर एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, राइट. सेक्शन 8 में जेंडर डिफाइंड है. नाउ द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल. सो whenever the word he comes in IPC, it does not mean that it is only talking about male. He in IPC means that it can be either male or either female. Section 9 talks about number. Now what is number? It tells you that unless the contrary appears from the context, the words importing the singular number which include the plural number and words importing the plural number include the singular number. So it tells you that कहीं पे भी अगर मान लीजिए person लिखा है तो includes all persons, कहीं पे वर्ड अगर persons लिखा है तो it also means a single person. ज़्यादा complicated नहीं है, बड़ी simple सी बात लिखी है just to avoid the confusion. Section 10 talks about man and woman. The word man denotes male human of any age. The word woman denotes a female human being of any age, right? So very clearly man means a biological male, woman means a biological female. Section 11 defines the person. Person includes a living person, but it also includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not. So this is very interesting here to note, जो कि हम यूजुअली सुनते नहीं हैं. तो यहाँ पे आईपीसी में पर्सन एक कंपनी भी हो सकती है, एक एसोसिएशन भी हो सकता है. इट कैन बी इवन द बॉडी ऑफ पर्सन्स whether they are incorporated or not, right? सेक्शन 12 में पब्लिक बताया है. अच्छा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ना कि क्या कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं? तो यहां से आपको पता चल रहा है दैट कंपनीज कैन बी प्रोसिक्यूटेड. कंपनीज ऑल्सो कैन बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कंपनीज के खिलाफ भी एफआईआर जो है कैन बी फाइल्ड, राइट. सेक्शन 12 में पब्लिक की बात करें तो पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और कम्युनिटी, राइट. पब्लिक मीन्स एवरीवन. सेक्शन 13 क्वीन जो है इसको हटा दिया गया है 1950 से. सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की सेवा करने वाला सर्वेंट कौन होता है? तो यहाँ पे लिखा है द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट किसको डिनोट करता है? किसी भी ऑफिसर को, किसी भी सर्वेंट को जो कंटिन्यूड है, जो अपॉइंट किया गया है या एम्प्लॉयड है इन इंडिया by or under the authority of the government, right? So it is important that you need to understand, first it is talking about officer, second it is talking about servant who is continuing, who has been appointed or who is employed within India, right? By or under authority of government. So it simply tells you government. Government can also mean state government,
government can also mean union government. So please understand, any officer who is continuing appointed or employed within India, any servant who is continuing appointed or employed within India by the authority of government, which means any foreign service का officer, फॉरेन सर्विस का जो ऑफिसर है, क्या आप उसको पब्लिक सर्वेंट नहीं मानेंगे, सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं मानेंगे? वो सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि यहां पे लिखा है दैट यू नीड टू बी अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर प्लेस्ड और वेयर यू आर पोस्टेड. if you are appointed by the government, you are a servant of the government. And definitely section 14 में ये डेफिनेशन कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए दी गई है. ब्रिटिश इंडिया की डेफिनेशन को 1937 के एक्ट से हटा दिया गया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1937 के एक्ट से रिपील कर दिया गया. सेक्शन 17 में जहां गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट दोनों इंक्लूड होता है, राइट. सेक्शन 18 में इंडिया को डिफाइंड है. इंडिया मीन्स द टेरिटरी एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ दिस प्रोविजन स्टैंड्स अमेंडेड. सेक्शन 18 में इंडिया की डेफिनेशन है. यू ऑलवेज रिमेंबर दिस. सेक्शन 18 वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइंस इंडिया. इंडिया ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सेक्शन 19 में जज डिफाइन किया गया है. जज क्या है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इट इज, सो वी विल फोकस ऑन दिस. The word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, whether civil or criminal, a definitive judgment, or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of a body of persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment. Very simple. Anybody can be a judge provided they have been given the adjudicating power. So it is telling you that a judge is a judge because he is officially designated as a judge, right? But other than judge, can there be more judges? Can there be other officers which can be included under the definition of judge? So it tells you that every person who is empowered by law to give any sort of judgment in any civil or criminal proceeding. जिलाधिकारी भी कभी कभी जज की भूमिका ले लेता है. सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी किन्हीं मामलों में जज की भूमिका ले सकता है, जहां पे कानून उसको एम्पावर कर रहा है कि वो डेफिनेटिव जजमेंट दे देगा. या वो ऐसा जजमेंट दे दे जिसको अगर अपील ना करें तो डेफिनेटिव होगी, या वो जजमेंट देने के बाद कोई अथॉरिटी कंफर्म कर दे तो भी डेफिनेटिव होगा. तो इसका मतलब किसी भी तरीके से फैसला सुनाने की पावर जो है वो जज कहलाती है, राइट. कोई बॉडी ऑफ पर्संस है या बॉडी ऑफ पर्सन है जिनको जजमेंट देने के लिए कानून ने एम्पावर किया है, तो वो सब जज की परिभाषा के अंदर आ जाएंगे. इलुस्ट्रेशन देखिए. अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज. कलेक्टर मतलब रेवेन्यू कलेक्शन. रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में कलेक्टर को पावर है, तो वो अपने अगर क्षेत्राधिकार के अंदर, जुरिस्डिक्शन के अंदर अपना काम कर रहा है तो वो जज है. मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज. वेरी सिंपल डेफिनेशन एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन. कह रहा है मेंबर ऑफ अ पंचायत विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन 8 ऑफ मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट इज ऑल्सो अ जज. मेंबर ऑफ पंचायत जिसको कह रहे हैं कि कोई सिविल मामला, पट्टे का मामला अगर पंचायत निपटा सकती है तो वो भी जज है. कोई मजिस्ट्रेट जो कि एक ऐसे मामले के, ऐसे चार्ज के रेस्पेक्ट में जुरिस्डिक्शन है जिसके पास ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल टू अदर कोर्ट इज नॉट ए जज. ये आपको डिफाइन कर दे रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम दूसरे कलर से हाईलाइट करेंगे फॉर योर ईजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge. Simply कह रहा है कि अगर एक मजिस्ट्रेट ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जिसकी वो सुनवाई नहीं कर सकता और उसको वो दूसरे कोर्ट को रेफर करना ही पड़ेगा, तो ऐसे केस की सुनवाई करते समय उस मजिस्ट्रेट को आप उस केस का जज नहीं बोल सकते, बिकॉज ही हैज नो अथॉरिटी. तो जजेस की अथॉरिटी को हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन. ही हैज
no jurisdiction to try that matter. To try that matter. Will you remember this? Always remember this, right? It is very interesting because देखिए पहली चीज तो ये कि आप सीधे बेयर एक्ट की लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं और आपको आइडिया लगेगा कि सिंपल चीजों को लीगल लैंग्वेज किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कर देती है और कभी कभी मामला बहुत सिंपल रहता है। प्लस इसको पढ़ने के बाद आपकी लीगल रीडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मैच्योर हो जाने वाली है, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ, राइट। सो सेक्शन 20 से हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप सेक्शन 20 में हम कोर्ट ऑफ जस्टिस देख लिए, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन क्या होती है, गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट में दोनों में डिफरेंस बताया है यहाँ पे, राइट। कुछ स्टेट अमेंडमेंट्स हैं जो कि हम इग्नोर करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, रॉन्गफुल गेन, डिसऑनेस्टी क्या होती है, फ्रॉडुलेंटली क्या होता है, रीजन टू बिलीव, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क, काउंटरफीट, डॉक्यूमेंट और वैल्यूबल सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वसीयत, omission, illegal omission, common intention. These all provisions are going to be discussed in the next part of the video. So do not forget to watch the complete video, and I would definitely want कि आप क्या करिए, इस पूरे provision को ध्यान से पढ़िए, right?